Hi everyone, how are you all? This is Yashka here and you are watching me on your favorite channel, that is Mom's Corner. So sorry, 2 days I was not there with my videos because I was not feeling good. Okay, so today we are discussing about cervical circlage. Okay, actually yesterday I was discussing with some of my gynecologists, and while discussing we came up with some points like, okay, there are many women who are suffering for the cervical circlage things, which are difficult in pregnancy sometime. Because of that, some ladies faces the preterm deliveries, premature birth and all those stuff some people are facing. Because of that, doctor advises for the cervical circlage. Okay, so then I thought, why not I should get a topic on this, and I'll have a video on this to understand some tips and advices. What is actually a cervical circlage is, what are the preventions to be taken, and what are the cares to be taken for this. Okay, so let's get started. Before that, whoever has subscribed my videos and my channel, thank you so much, and whoever has not subscribed yet, I would like to request them, please subscribe my channel, please like my videos and share whoever needed this. Thank you. So today let's understand what is cervical circlage. Okay, so cervical circlage is a common procedure which helps preterm birth and the high risk of pregnancies. Okay, preterm birth is only during the time of high risk of pregnancies only it appears, like maximum in twins, babies. Yeah, some ladies are facing the problem with the uterus issues and all those stuff. This type of thing, it is advisable. That is for the cervical circlage. Okay, so don't be worried about that, whether you are just a procedure or you are preparing for that. No worries, my video will guide you all the cares, how to take care of yourself, what are the tips you need to take care, everything we will cover it in today's video. Okay, so first of all we will understand what is cervical circlage. Okay, cervical circlage is a stitch, okay, placed around the cervix to keep it closed during the pregnancy. ये cervical circlage होता क्या है एक्चुअली? इसमें क्या होता है, जो प्रेगनेंसी के बेबी के वेट के वजह से, या ट्विन बेबीज है, या फिर कुछ लोगों का यूट्रस बहुत जल्दी उतर जाता है, उस टाइम पे क्या करते हैं डॉक्टर, उसको स्टिचेस दे के ये करके उसको होल्ड करके रखते हैं, जहाँ पे प्री टर्म डिलीवरी या प्री टर्म लेबर शुरू ना हो जाए, बेबी की डिलीवरी जो है प्री बर्थ ना हो जाए, प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो जाए, इस चीज़ की वजह से ये प्रोसेस किया जाता है. ओके, तो नाउ सेकेंड थिंग इज, क्या केयर लेने हैं उसके होने के बाद. जब सर्विकल सर्कलेज किया है तो उसके बाद में क्या क्या केयर लेनी चाहिए. ओके, तो अगर आपने सर्विकल सर्कलेज करा है तो सबसे ज़्यादा आपको एसेंशियल है दैट इज रेस्ट. बहुत ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना. ओके, कोई भारी चीज़ ना उठाए, कोई ऐसी चीज़ों को लिफ्ट करना, बैंड करना, नीचे बैठना, सीढ़ियाँ उतरना, जितना हो सके उतना आप अवॉइड कर दीजिए. ओके, फॉलो डॉक्टर के एडवाइस जो भी है वो सब चीज़ें फॉलो कर दीजिए. जो भी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से कोई भी अपॉइंटमेंट मिस ना कराए. ओके, हर एक अपॉइंटमेंट अटेंड करें. ओके, नेक्स्ट, आपका जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं उस पर ध्यान दें के बारीकी से. अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, या कैंपिंग हो रही है, या अनयूजुअल डिस्चार्ज हो रही है, नॉर्मली डिस्चार्ज होती है बट कुछ केसेस में अनयूजुअल डिस्चार्ज होती है, तो अगर वैसा डिस्चार्ज हो रहा है तो ये सारी चीज़ों को आपको बारीकी से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. एंड तीसरा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपको हाइड्रेटेड रहना है और बैलेंस डाइट लेना है. उसके लिए मैंने और 2 वीडियोस बनाए हुए हैं ऑलरेडी, जो आप मेरे वो वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज, आफ्टर सर्विकल सर्कलेज आपको क्या एक्टिविटीज जो है जो अवॉइड करने हैं, जो आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी. सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बोला, जैसे कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है,
सीढ़ियाँ उतरनी नहीं है, नीचे बैठना नहीं है। ओके, अब अगर योगा कर रहे हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो फिजिकल एक्सरसाइज जितना हो सके उतने लिमिट में करो, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। एंड ऑल्सो अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स रखना चाहते हो तो आपको उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा और डॉक्टर के एडवाइस लेके ही यू कैन कंटिन्यू विथ योर सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, वो हो गई। उसके बाद आपको कब डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ओके, इसमें क्या होता है, कभी कभार थोड़े बहुत भी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, हम माइनर बोल के छोड़ देते हैं, बट वो इतनी माइनर होती नहीं है। इसीलिए आपको बारीकी से अपने खुद के हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर को बीच बीच में कंसल्ट भी करना चाहिए। तो सबसे पहला आपको, अगर समझो आपको एकदम से सीवियर पेन होने लगे या क्रैम्पिंग होने लगे या फिर हैवी ब्लीडिंग होने लगे या थोड़ा सा फीवरिश लगे या एकदम से ठंड लग रही जैसी, बहुत ज़्यादा चिल्ड लग रहा है जैसा, तो उस टाइप पे आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। या फिर आपको कुछ डिस्चार्जेस में चेंजेस लगे या कंटिन्यू डिस्चार्ज हो रहा हो तो वैसे केसेस में आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। ओके, तो ये थे कुछ टिप्स जहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किस चीज़ों का क्या ख्याल रखना चाहिए और सर्विकल सर्कुलेज होता क्या है। इन सब के ऊपर मैंने आपको वीडियो बताई है, बट मेरी जो भी नॉलेज होती है, जो भी वीडियोस में कंटेंट होते हैं, वो मैं जो गायनाकोलॉजिस्ट है या पीडियाट्रिशियन है, हर किसी से डिस्कस करके, बहुत सारे आर्टिकल्स, बुक्स रीड करके उसमें से आपके लिए कंटेंट लेके आती हूँ। ओके, तो आपको रिक्वेस्ट है कि हर किसी की तबीयत अलग होती है, तो अपने डॉक्टर से एक बार एडवाइस ले और उसके बाद ही गो थ्रू करें। ओके, ये चीज़ें आपकी एडवाइस के लिए और आपके हेल्थ केयर के लिए, आप घबराए नहीं, कोई टेंशन ना ले बारीक बारीक चीज़ों का, इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आते हैं। ओके, तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप एक लाइक करके सब्सक्राइब करिए, तो हमें भी और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए बहुत अच्छा मन लग जाता है। ओके, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सर्विकल सर्कुलेज जो है ये प्रूवन वे है, इस बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। अगर डॉक्टर ने ऐसा कुछ एडवाइस किया तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव रहे, क्योंकि आपका और आपके बेबी का हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर योर हेल्थ एंड योर बेबी हेल्थ इज ऑलवेज द प्रायोरिटी। Okay, so please concern your doctor for any queries. Okay, thank you for watching and please like my videos, subscribe my channel and please share with the people who are in need of this. Okay, love you, bye bye, take care.